Hello dear students, I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. This is the second and the last lecture of the poem 2.4 Upon Westminster Bridge, written by William Wordsworth. In the last lecture we had started the poem and even we had seen introduction of this poem. Even we had seen about the poet, that is who is William Wordsworth, and his poetry upon Westminster Bridge. Later on we had seen the short summary of this poem, that is upon Westminster Bridge, and lastly we had just started line by line explanation of this poem. However, that is not yet complete. So today what we are going to do, it is listed in this slide. Please see. Firstly, we are going to complete line by line explanation of this poem. Firstly, we will complete that octave. I think we had seen the 3 lines. The remaining 5 lines are remaining from the octave sections, and from sestet 6 lines are remaining. So we will do that first. Later on we will going to see this poem is consist of a student rhyming words and rhyming scheme. So we will do that of this poem, and then thirdly we are going to do figures of speech of this poem, that is line by line solving of the figures of speech we will do, and lastly the most important section that is required to do, and that is appreciation of this poem. So without wasting time, let's move on to the line by line explanation of this poem. From where we stopped, from there we will start. So please see line number 4. Now student, please see page number 82. We had already seen this line, a sight so touching in its majesty. So moving towards the next line, that is, this city now doth like a garment wear the beauty of the morning silent bare. Matlab meaning is given in the slide. Please see. As the morning sets in, the poet feels like a city is wearing the beautiful morning like a garment. ठीक है, पोएट देखो यहाँ पे डायरेक्टली लाइक वर्ड यूज किया, मतलब देख के समझ गया कि यहाँ पे सिमिली है. सिटी मतलब लंदन सिटी को क्या बोला है, इट्स लाइक डॉथ, इट मीन्स डस. ठीक है, डॉथ ओल्ड इंग्लिश है और न्यू इंग्लिश होता है डस. ठीक है, सो डस लाइक अ गारमेंट, इट मीन्स सिटी कैसे ऐसा लग रहा है कि ब्यूटीफुल गारमेंट पहनी हुई है, वियरिंग अ ब्यूटीफुल गारमेंट. इन दिस गारमेंट मीन्स ड्रेस इन दिस अर्ली मॉर्निंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, एंड स्पेशली अर्ली मॉर्निंग वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, आई हैड taught you earlier that it's very silent, it's not busy, and nobody is there. Bare means nobody is there, so the silence and the scene, sight is so beautiful that the poet is just imagining standing over there. It's like majesty, it's like miracle standing over at upon the Westminster Bridge. So please see the summary. It is मैंने 2 लाइन का आपको शॉर्ट समरी भी दिया है वहाँ पे. As the morning sets in, जैसी सुबह होता है आप देखोगे, the poet feels like the city is wearing the beautiful morning. Okay, ऐसे लग रहा है कि सिटी ने एक ड्रेस है, वो ड्रेस वियर किया है और वो मॉर्निंग ड्रेस है. मॉर्निंग का ड्रेस जैसे रहता है फ्रेश, यू नो, डिलाइट, एक्साइटेड, वांट्स टू डू समथिंग, तो ऐसा लग रहा है कि लंदन सिटी ने वो ड्रेस वियरिंग किया है लाइक अ गारमेंट. इट मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट द लंदन सिटी इज वियरिंग बिकॉज ऑफ दिस वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज सो ब्यूटिफुल दैट अर्ली मॉर्निंग सन रेज आर coming on this beautiful architecture by the human being, and it looks so beautiful, you know, since it is still too early, पर अभी ये बहुत सुबह है, for the people to be awake. अभी इतना जल्दी लोग you can see people had not come for the job, and the you can see Westminster bridges, if you would see, is not so busy. मतलब सुबह के वक्त आप देखोगे मतलब ज़्यादा रश नहीं है, कम रश है, you know, and अभी भी लोग सो के अभी उठ रहे हैं. ठीक है, the city seems silent. सुबह के वक्त अगर आप भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आपने देखा होगा कि रोड पे very less people were there, but after that you can see of course it becomes a busy street. देखोगे मॉर्निंग के वक्त स्टूडेंट स्पेशली द रश इज लेस, एंड दैट्स व्हाई द सिटी सीम्स लाइक साइलेंट एंड bare. It means nobody is there because the poet is standing over upon the Westminster Bridge and realizing that because nobody is going for the job, the street and the bridges of this you can see London is you can see less people were there. Okay, it's not so busy, and that's why the poet is enjoying the beauty of the London more properly. To the poet, as there is no one on the street, because कोई भी नहीं है तो देखने का और मज़ा आ रहा है. अभी जैसे रश ज़्यादा रहता है तो हम उतना कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाते. अगर कोई भी जैसे लाइक आप
प्लेस पे जाते हो, जैसे मुंबई में कोई भी मुंबई दर्शन के लिए जाते हो, ठीक है, तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ द मुंबई, ओके, बीचेस पे जा रहे हो, वेयर एवर यू आर गोइंग, सो वहाँ पे रश ज़्यादा रहता है तो वी डू नॉट एन्जॉय मोर, बट इफ द लेस rush is there we enjoy more properly. So that's why, because the poet is standing early in the morning at the bridge of upon Westminster Bridge, the poet is enjoying the beauty of Westminster Bridge. Okay, now you can see next three lines of last three lines of the octave. What here it has been said, see this slide. Ships, towers, domes, theatres and temples lie upon open upon the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Up you can see the poet is very much happier and presenting all the structures created by the human being, especially you can see ships हो गया, towers हो गया, domes हो गया, theatres हो गया, you know, temples हो गया, churches and all. So ये इतना beautiful human being का architecture देखे, craftsmanship देखे, the poet is so happy, okay, and he is saying that in early morning these all things as the sunshine is there, जैसे sunshine हो रहा है, और ये human being के जितने भी आर्किटेक्चर जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, ह्यूमन जो सभ्यता का एक निशानी है जिसको बोलते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, दैट नाउ द ह्यूमन बीइंग एज सिविलाइज्ड एंड प्रोग्रेसिंग फॉर डेवलपमेंट. जैसे सनराइज होता है ये सारे थिंग्स ग्लिटर करने लगते हैं, शाइन करने लगते हैं, ठीक है. सो सी व्हाट हियर इट हैज बीन सेड, आई हैड प्रेजेंट इन द स्लाइड. द पोएट लिस्ट द वेरियस स्ट्रक्चर्स, जैसे शिप्स हो गया, टॉवर्स हो गया, डूम्स हो गया, थिएटर्स हो गया, टेम्पल्स हो गया, जितना भी स्ट्रक्चर्स मैन मेड है, ह्यूमन बीइंग ने जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को एम्बार्क करते हुए, सिंबल रखते हुए, एज वी हैड कंस्ट्रक्टेड, ही can see from the bridge and notes that they all lie upon the fields to the sky. He is saying ये सब नेचर पे जो बना हुआ है, इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रिज, चर्च, शिप्स, टावर्स, ये सब देखिए द पोएट इज सो हैप्पी दैट ह्यूमन बीइंग वांट्स टू डेवलप, वांट्स टू बी सिविलाइज्ड, एंड ये सब थिंग्स जो है दिस इज अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, और वो ये सब चीज़ ही इज व्यूइंग, देख रहा है, स्टैंडिंग अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज एंड एंजॉइंग दिस सिनेरियो. ये सब सिचुएशन देख के, सराउंडिंग देख के, द पोएट इज सो हैप्पी अबाउट द ह्यूमन बींग्स डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन. ठीक है. इन द लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, जैसे सुबह की रेज, अर्ली मॉर्निंग रेज एज इट इज़ फॉलिंग ऑन दिस शिप्स, टॉवर्स, डूम्स, थिएटर्स, चर्च, टेम्पल, वॉट एवर इट इज, it is shining like a glittering. देखो they all seem like bright and glittering. ऐसे लग रहा है जैसे डायमंड ग्लिटर करता है, यू नो, सनशाइन आप देखोगे जैसे होता है. ऑल थिंग्स, जैसे भी बिल्डिंग्स रहते हैं, आर्किटेक्चर डन बाय द ह्यूमन बीइंग, ऑल थिंग्स आर शाइनिंग, एंड द पोएट इज सेइंग इट दे ऑल बिकम मोर ब्राइट. मतलब जितना ह्यूमन बीइंग ने उसको बना के रखा है वो और सुंदर हो गया जैसे सनराइज उसके ऊपर पड़ता है. एंड स्पेशली स्टैंडिंग अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज अबव यू कैन सी थैम्स रिवर. थैम्स रिवर के ऊपर खड़े होके इतना अच्छा ब्रीज ब्लो हो रहा है. द पोएट इज सो हैप्पी बिकॉज स्मेलिंग दैट ब्यूटिफुल क्लियर एयर स्टैंडिंग अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. तो ये यहाँ पे ऑक्टेव हमारा खत्म होता है. चलो अब सस्टेट देखते हैं. सस्टेट का हम दो लाइन देखेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द पोएम मोर प्रॉपरली. द सस्टेट first two lines as follows. Never did sun more beautifully step in his first splendor, valley, rock or hill. So यहाँ पे आप देखोगे अब पोएट बता रहा है कि इससे पहले मैंने इतना ब्यूटीफुल थिंग्स देखा ही नहीं. यू नो, इतने ब्यूटीफुल वैली, रॉक, हिल, ऐसा जो एटमॉस्फियर लंदन के कोर जैसे सेंटर में बन के तैयार हुआ है बाय ह्यूमन बीइंग ने अपने नॉलेज से आर्किटेक्चर इतना अच्छा खड़ा किया है, बिल्डिंग्स एंड ऑल. तो ये पोएट इज सेइंग कि वर्ड्सवर्थ इज सेइंग दैट आई हैव नेवर एवर सीन सच थिंग्स. सो देखो क्या बोला है. द पोएट क्लेम्स दैट द फर्स्ट रेज ऑफ द सन हैव नेवर शोन सो ब्यूटिफुली ऑन अ वैली, रॉक और हिल द वे दे शोन ऑन द सिटी ऑफ लंदन दैट मॉर्निंग. देखो अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट द पोएट इज सेइंग कि जैसे सूरज का किरण आता है एज अ सनशाइन एक्चुअली कम्स, और सनशाइन कभी भी ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में आता है,
तुम्हारे एरिया में नहीं आया, वो एरिया में आया, ये कंट्री में सनशाइन आया, वो कंट्री में सनशाइन नहीं आया, ऐसा कभी भी नहीं होता है. यू कैन सी एवरीवेयर, यू कैन सी सन रेज आर कमिंग. सो सन रेज स्पेशली जब वैलीज, नेचर के वैलीज पे, जैसे माउंटेन्स, माउंटेनरी एरिया पे, रॉक पे, हिल पे, कभी यू कैन सी जब सन रेज पड़ता है तो कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर होता है. बट उससे भी ज़्यादा, above and all, these architecture done by, at the core, at the center of the London city, done by the human being. The poet is saying that I had never seen, मतलब valleys, hills, रिवर्स, ये जब इनके ऊपर सनशाइन होता है तो ऑफकोर्स इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, बट इनसे भी ब्यूटीफुल तब लग रहा है पोएट को व्हेन दैट सनशाइन इज, सन रेज आर फॉलिंग अपॉन द ब्रिजेस, टोम्स, यू कैन सी these temples, church, you can see skyscraper buildings, tall buildings, ये सब के ऊपर जब ये सनशाइन पड़ रहा है, the city, that is the London city, looks so beautiful in the early morning that the poet is saying. तो पोएट के हिसाब से जो सन का जो फर्स्ट रेज है, इतना ब्यूटीफुल उसने ये भी वैली के ऊपर पड़ते नहीं देखा जितना कि लंडन सिटी में, स्पेशली when there is a sunrise and when the sun rays are actually falling upon these architecture done by human being, it looks so beautiful, especially at early in the morning. So the poet is very happy here. Let's see the next two lines of the sustain. Never saw I, never felt a calm so deep, the river glith at his own sweet will. So the poet is saying in this two lines, see the slide. The sight of the city of the London in the early morning gives the poet a sense of calmness he has never felt before. He then describes the river which seems to be, कौन सा रिवर मालूम है ना, थेम्स रिवर, THAMES, थेम्स रिवर, which seems to be flowing at his own pace in the still sleeping city. So what here it has been said, please see in this two line, poet is feeling awesome. The poet is feeling delighted standing upon the Westminster Bridge, and poet सिर्फ beauty of nature, beauty of London, beauty of human beings, architecture done on this bridge or nearby of the center of the London, ये सब देख के poet सिर्फ excite हो रहा है और खुश हो रहा है कि कितना अच्छा वर्क हार्ड हुआ है by human being. तो यहाँ पे फिर से poet बोल रहा है कि मैंने आज तक नहीं देखा, never saw I had never saw, and even मैंने felt भी नहीं किया, feel भी नहीं किया, the river that it is flowing and so lovely, you can see clean air I feel, especially early in the morning when the people are not there and the rush is less, okay, and especially you can see the poet is feeling like he had never feel कि अभी तो स्लीपिंग सिटी है, अभी स्लीपिंग सिटी मतलब सब लोग सोए हुए हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में स्पेशली आप देखोगे इफ़ यू आर गोइंग फॉर द मॉर्निंग वॉक बाय 4 to 5, ऑफकोर्स यू कैन सी मैक्सिमम पीपल आर स्लीपिंग एट दैट टाइम. तो उसलिए पोएट ने लंदन सिटी के लोगों को अर्ली मॉर्निंग में बताया स्लीपिंग सिटी, इट मीन्स द पीपल आर स्लीपिंग. उस टाइम पे पोएट जब वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे आके ब्यूटी ऑफ द नेचर देख रहा है और फिर 5:30-6 बजे के टाइम पे व्हेन देयर इज अ सनराइज जैसे होने जा रहा है, ये टाइम पे रश बहुत कम है, ये सब देख के द पोएट इज सो हैप्पी अबाउट द ह्यूमन यू कैन सी आर्किटेक्चर. सो द साइट ऑफ द सिटी ऑफ द लंडन इन द अर्ली मॉर्निंग गिव्स द पोएट अ सेंस ऑफ कामनेस. ये जो ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ द लंडन सिटी, द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द मैन हु हैड डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक द लंडन सिटी अ ब्यूटीफुल यूनिक सिटी, ये उनका हार्डशिप्स देख के द पोएट इज सो हैप्पी एंड इवन पोएट इज फीलिंग द सेंस ऑफ कामनेस. कामनेस क्यों उसको आ रहा है, स्पेशली यू कैन सी कामनेस मतलब एक पीस फील कर रहा है पोएट, ओके, और वो पीस उसने आज तक फील नहीं किया, ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर. सो ही इज डिस्क्राइबिंग कि उसको पीस क्यों फील हो रहा है व्हेन he is standing upon Westminster bridge upon, you can see there is a river and the river name is Thames river, और जब भी river flow हो रहा है there is a sweet breeze it is, and when it
ब्लोज, जब वो ब्रीज ब्लो हो रहा है, पोएट को एक अच्छा सा पीस काम फील हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए पोएट कह रहा है कि अभी इतना अर्ली मॉर्निंग में 5:30-6 बजे तक जब जैसे सनराइज हो रहा है, तो ये टाइम पे अगर आप देखोगे पीपल आर वेरी लेस एंड यू कैन सी राइट पोएट इज इज ऑन मॉर्निंग वॉक, ओके। और वो टाइम पे उसको ये बिजी स्ट्रीट भी नहीं लग रहा है, मतलब एकदम नोबडी इज देयर, और वो टाइम पे ब्रीज ब्लो हो रहा है, सनराइज अभी स्टार्ट हो रहा है, और जैसे सनशाइन धीरे धीरे आ रहा है सारे, यू कैन सी एज इट इज स्प्रेडिंग इन द स्काई, ये सारा सीन देख के अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज द पोएट इज सो हैप्पी एंड डिलाइटेड, okay. So the last two lines shall we take? Dear God, the very house seems asleep and all that mighty heart is lying still. So what here it has been said, please see. The beauty of the city of the London amazes the poet so much that he calls out to God. ये जो situation देख के poet को सिर्फ God की याद आ रही है, ठीक है। The poet is thanking to the God also that how because of your you can see guidance, or you can say because of course God हमको ऐसा हम करने के लिए हमको मोटिवेट करता है अकॉर्डिंग टू द पोएट। सो द पोएट इज सेइंग दैट ये जो ब्यूटी है लंदन का, ये देख के पोएट इज सो अमेज्ड, इट मीन्स शॉक्ड एंड ऑल्सो हैप्पियर दैट ही इज थैंकिंग टू द गॉड, ओके, एक्सक्लेमिंग इन वंडर, इट मीन्स सरप्राइज होके गॉड को थैंक्स कर रहा है और कह भी रहा है। द पोएट सेज दैट हाउसेस seem asleep, which refers to people still sleeping in their homes. Houses, you can see, seems asleep. Please underline this term and write down the meaning. It refers to people still sleeping in their homes. पोएट बोल रहा है कि अभी भी सुबह के वक्त, ऑफ कोर्स हम लोग 6 बजे तक अगर देखो तो हमारे घर बंद रहते हैं, हम नॉर्मली वी कैन सी वी डोंट गो फॉर आउटसाइड जॉब एंड ऑल, मतलब 6 के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 4 to 6 के टाइमिंग में जब पोएट वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़ा है, तो पोएट कह रहा है कि अभी भी लंदन में अगर मॉर्निंग में देखो तो पीपल आर स्टिल स्लीपिंग राइट नाउ, ओके। यू कैन सी पीपल स्टिल आर देयर इन देयर स्लीप, okay, and you can see people still sleeping in their homes according to the poet, okay। अभी भी वो लोग सो रहे हैं, इसलिए उसने लास्ट लाइन में भी बोला था स्लीपिंग सिटी, मतलब अभी तो लोग सब सो रहे हैं तो स्लीपिंग सिटी है, ठीक है। बट अभी 5-6 घंटे के बाद अगर आप देखोगे कि ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज एकदम रश फुल, यू कैन सी बिजी स्ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए पोएट कह रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में यू कैन सी एज द पीपल आर स्लीपिंग एट देयर होम्स। इन द फाइनल लाइन लास्ट में वो ये बोल रहा है, ही ट्रीट्स द सिटी लाइक अ लिविंग बीइंग। सिटी को आप देखोगे उसने कैसे पर्सोनिफाइड किया है, ठीक है। मैंने बार बार बोला है यहाँ पे सिटी, लंदन सिटी को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी गई है, स्पेशली वेस्टमिंस्टर ब्रिज को भी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी गई, इट इज़ बीन गिवन, सो इट इज़ पर्सोनिफाइड, ठीक है। सो हियर ह्यूमन बीइंग क्वालिटी इज गिवन टू द लंदन सिटी एंड द आर्किटेक्चर्स ऑफ यू कैन सी लाइक ब्रिजेस एंड ऑल थिंग्स आर गिवन एज अ पर्सोनिफाइड, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्वालिटी इज बीन गिवन, तो यहाँ पे सिटी को भी आप देखोगे ह्यूमन बीइंग की सारी क्वालिटीज दिया है, एंड दस कंपेयर्स द साइलेंट सिटी of London to a sleeping person whose heart is lying still sleeping। अभी देखो जैसे हम लोग रात के समय when we sleep, okay, of course we are silent, okay, and same way यहाँ पे भी बोला है कि as early in the morning people were just sleeping, okay, सुबह के बाद जैसे लोग सो रहे हैं, जैसे you can see 8-9 o'clock होगा, all the people are rushing towards their job, their workplace and all, and this Westminster Bridge will converted into the busy street where everybody is working, going to make this beautiful London more properly। ये लंदन को बनाने के लिए, आर्किटेक्चर करने के लिए आप देखोगे सबके सब लोग लगे पड़े हैं, ऑल आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। तो यहाँ पे क्या बोला है, हियर द पोएट कंपेयर्स लंदन को किससे कंपेयर किया है, एक ऐसे पर्सन से जो सो रहा है, ठीक है, एंड बट whose heart is lying still, वो सो रहा है पर उसके दिमाग में क्या है कि हमको डेवलपमेंट करना है लंदन सिटी का, ठीक है। तो जैसे आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हार्डवर्क करके आते हो, शाम को अगर आप आके सोते हो तो इट डजेंट मीन कि आप मतलब यू हैड फॉरगटन कि आपको क्या करना है, फिर से मॉर्निंग में उठ के फिर से आप वर्क प्लेस पे आ जाते हो एंड अगेन यू स्टार्ट डूइंग द हार्ड वर्क, ठीक है। तो यही बोला है कि जैसे पीपल वर टेकिंग द रेस्ट, इट डजेंट मीन दैट दे हैड जस्ट स्लीपिंग,
their heart, mighty heart, it means their intellectual heart is still thinking कि हमको फिर से लंदन सिटी को और ब्यूटीफुल बनाना है. So his whose heart is lying still sleeping. Okay, उनका हार्ट अगर आप देखोगे स्टिल स्लीप कर रहा है, बट इट डजंट मीन दैट दे आर स्लीपिंग प्रॉपरली, दे आर एक्चुअली थिंकिंग टू मोर डेवलप द लंदन सिटी. तो ये आप देखोगे, ये हमारा सस्टेट के 6 लाइन्स हो गए. नाउ नेक्स्ट topic we will take, that is rhyming words and rhyming scheme of this poem. Now see student, I had present one slide to make you understand the rhyming words and rhyming scheme of this poem. The poem, if you would see, it is divided into 2 parts. The first 8 lines are known as octave. The first part comprising 8 lines octave. I think there is another sky में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था, फिर से बता रही हूँ. Next is sustate. Sustate मतलब it is consist of 6 lines. तो नीचे का अगर आप देखोगे 6 lines है, वो sustate बोलते हैं. ठीक है, ये तो क्लियर है आई थिंक सो. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, हम राइमिंग वर्ड्स कर रहे हैं. तो फर्स्ट 4 लाइन्स पहले देखते हैं. फर्स्ट 4 लाइन्स का राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी ए. तो आप पोएम देख लो स्टूडेंट, प्लीज लुक एट द पोएम. पोएम अगर आप देखोगे स्टूडेंट, सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखो, वो राइमिंग होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो फेयर है इज राइमिंग विद द 4th लाइन. ठीक है, दैट इज वियर. ठीक है, फेयर वियर. और BBQ क्योंकि बाय मजेस्टी, तो लास्ट का वाई और साउंडिंग कॉन्सोनेंट देखो सेम आ रहा है, तो इसके लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा? BB. फर्स्ट 4 लाइन्स का क्या होगा? राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम, फेयर वियर बाय मजेस्टी. तो ये आपका फर्स्ट 4 लाइन्स का हो गया. नेक्स्ट 4 लाइन्स का प्लीज सी स्टूडेंट. The beauty of the morning silent bare, ships, towers, dooms, theatres and temples lie, upon unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. तो ये जो 4 लाइन है, ये 4 लाइन का लास्ट वर्ड आप देखो किससे मैच हो रहा है. तो सेम, हम स्कीम सेम है स्टूडेंट. और बेयर इज मैचिंग, इज हैविंग द सिमिलर साउंडिंग विथ एयर. ठीक है, तो बेयर एयर एंड लाई स्काई. ठीक है, बेयर एयर एंड लाई स्काई. तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ABB A. ठीक है, अब आ जाओ सस्टेट पे. प्लीज कम टू द सस्टेट. यहाँ पे राइमिंग, यहाँ पे आप राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम प्लीज लुक एट. हम 6 लाइन्स का डायरेक्ट लेते हैं. ठीक है, तो 6 लाइन्स का राइमिंग स्कीम, सेंटेंस का लास्ट वर्ड पे ध्यान दो. अगर सेम उच्चारण कर हो रहा है, सेम इट इज साउंडिंग, इफ यू आर प्रोनाउंसिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, तब वो जाके राइम बन जाता है. ठीक है, वो राइम कब बनता है? जब सेम साउंडिंग इज देयर. ठीक है, तो जब सेम साउंडिंग रहेगा तो सेम अल्फाबेटिकल लेटर भी डालने का है उसके सामने. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो लास्ट 6 लाइन में 3-3 यहाँ पे बन रहे हैं पेयर्स. ठीक है, बिकॉज ये 6 लाइन्स है तो 3-3 लाइन्स 3-3 वर्ड्स हमारे पेयर बनेंगे. तो कैसे बन रहा है देखो, स्टिप डीप अस्लीप, सेम साउंडिंग है. हिल विल स्टिल, सेम साउंडिंग है. ठीक है, तो 3-3 वर्ड का यहाँ पे पेयर बन गया. इज दैट क्लियर? यहाँ पे 3 वर्ड का पेयर क्यों बना? स्टिप डीप अस्लीप, हिल विल स्टिल. इसलिए बन रहा है बिकॉज ऑल द 3 वर्ड्स ऑफ द लास्ट सेंटेंस लास्ट वर्ड इज हैविंग द सिमिलर साउंडिंग. और 3 बनता है, 3 भी बनता है और 2 वर्ड्स का भी पेयर बनता है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेव में तो 2 वर्ड्स के पेयर बन रहे थे, बट ये सस्टेट में इफ यू वुड सी 3-3 वर्ड्स के पेयर बन सकते हैं, तो हमने बना दिए. तो इस तरीके से आपको करने का है एग्जाम में भी. ठीक है, सो द राइमिंग स्कीम इज CD CD CD. Is that clear? And the rhyming words are stip, deep, asleep, hill, will, still. और ऑक्टेव का वापस से रिवाइज कराती हूँ. फेयर वियर एंड बाय मजेस्टी फर्स्ट 4 लाइन्स में. नेक्स्ट 4 लाइन्स में बेयर एयर एंड लाई स्काई. ये हमारा ऑक्टेव का लास्ट 4 लाइन्स का हो गया. तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करने का स्कीम पता चल गया है. फर्स्ट ऑक्टेव में ABB A है एंड सस्टेट में CD 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 है. इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछेगा तो लिखने का है. नेक्स्ट मूव ऑन टू द फिगर्स ऑफ स्पीच लाइन बाय लाइन सॉल्विंग. फिगर्स ऑफ स्पीच लाइन बाय लाइन वी विल सॉल्व. फर्स्ट लाइन, अर्थ हैज not anything to show more fair. So in this line if you would see student, which figure of speech is there? I can see, देख के सबको लग गया होगा कि इसमें बहुत
एग्जागरेट करके सेंटेंस को प्रेजेंट किया है, बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया है. सो अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर इज अ हाइपरबोल. Okay, so why it is hyperbole? Because you can see exaggerated statement is used. Okay, earth has not anything to show more fair. It means the poet is स्टैंडिंग अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. और पोएट ना बहुत ओवर एक्साइटेड हो गया ये वेस्टमिनिस्टर ब्रिज को देख के कि अर्थ में सिर्फ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज ही थोड़ी ना है, बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है, इवन 7 वंडर्स हैं हमारे यहाँ हमारे वर्ल्ड में. तो उसको छोड़ के वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज को इतना ब्यूटीफुल बोल रहा है. इट मीन्स पोएट इस सेंटेंस को थोड़ा एग्जागरेट या हाइप बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहा है. दैट्स वाई इन दैट लाइन वी कैन से दैट देयर इज नन अदर देन हाइपरबोल स्टेटमेंट इज देयर. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया. सेकेंड लाइन इफ यू वुड सी स्टूडेंट, व्हाट इज द सेकेंड लाइन? वी विल सी dull would he be of soul who could pass by. तो ये लाइन में अगर आप देखोगे स्टूडेंट, देयर इज inversion. Okay, why it is inversion? Because words in this line have been rearranged for poetic effect. मैंने बताया ना, पोएम में राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम लाने के लिए पोएट क्या करता है, सेंटेंस के फॉर्मेट को चेंज करता है और उसको कहते हैं हम इन्वर्जन. ठीक है, सो द करेक्ट ऑर्डर, हु विल टेल? द करेक्ट ऑर्डर इज वेरी इजियर. ही आपका सब्जेक्ट है तो ही सबसे पहले आएगा. ही कुड पास बाय वुड बी ऑफ डल सोल. तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑफ दिस लाइन. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. वी विल सी अ साइट सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी. ठीक है, तो यहाँ पे देख के सबको समझ गया कि यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन. व्हाई इट इज एलिट्रेशन? बिकॉज साउंड ऑफ द लेटर एस इज रिपीटेड. हाउ मेनी टाइम्स एस इज रिपीटेड? आई थिंक इट इज रिपीटेड ट्वाइस टाइम्स. दैट इज साइट एंड सो देयरफॉर इट इज व्हाट, एलिट्रेशन. इज दैट क्लियर? तो ये आपका थर्ड लाइन का हो गया. नेक्स्ट फोर्थ लाइन देखो, दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर. अब ये देख के तो वियर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, ये दोनों लाइन ले लेते हैं हम, यहाँ तक ले लेते हैं सो दैट ये कवर हो जाएगा. और ये लाइन में देखोगे लाइक दिया है, तो लाइक देख के आपको समझ गया कि यहाँ पे क्या है, सिमिली है. ठीक है, सो देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग विद द पीस ऑफ क्लॉथ, दैट इज गारमेंट, विथ द यूज ऑफ द वर्ड लाइक. ठीक है, जैसे ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग है ऑफ द लंडन, उसको डायरेक्टली कंपेयर किससे किया है? इट इज़ बिन डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द ब्यूटीफुल सिल्क गारमेंट लाइक लंडन इज वियरिंग. और एक यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसलिए हमने ये दो लाइन निकाला है, और वो है पर्सोनिफिकेशन. मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे लंदन सिटी को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ दी गई है, तो देयरफॉर द लंदन सिटी हैज़ बीन पर्सोनिफाइड. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स लंदन सिटी इज एनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग है, बट इट इज़ गिवन द ह्यूमन बीइंग क्वालिटी ऑफ वियरिंग द ड्रेस. हु इज़ वियरिंग द ड्रेस? ह्यूमन बीइंग्स आर वियरिंग द ड्रेस. तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी होगा. इज दैट क्लियर? Next line we will take ships, towers, domes, theaters and temples lie. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे which figure of speech is there? Alliteration. Why? Because the sound of the letter T. जैसे देखो थिएटर, टेम्पल्स, टी इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये लाइन में? एलिट्रेशन. इज दैट क्लियर? Next line if you would see student, what is the line? Open unto the fields and to the sky. See, there is repetition. Repetition of what? Repetition of the. So the is repeated twice times for poetic effect. ठीक है, next line we will see all bright and glittering in the smokeless air. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एलिट्रेशन इज देयर. ओके, बिकॉज ऑल एंड एयर, फर्स्ट और लास्ट में ए अगर आप देखोगे साउंड, इवन एंड भी है. ठीक है, तो साउंड इज रिपीटेड, सो देयर इट इज एलिट्रेशन. इज दैट क्लियर? तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ऑक्टेव सेक्शन कंप्लीट हो गया. ठीक है, लास्ट लाइन में क्या है? एलिट्रेशन है. नाउ कम टू द सस्टेट. सस्टेट में आ जाओ स्टूडेंट. सस्टेट का 6 लाइन्स अगर आप लोग देखोगे, नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टिप. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है?
Here in this line, if you would see, again hyperbole is used. Okay, in this line the poem declares that the effect of morning sun on the city of the London creates beauty and that never has been experienced before. So the statement is exaggerated, so we can say there it is hyperbole. Now you can see student, hyperbole के अलावा भी अगर आप देखोगे तो सस्टेट के स्टार्टिंग 3 लाइन्स में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच मिलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट, नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुल स्टेप. हाइपरबोल के अलावा यहाँ पे इन्वर्शन भी है, तो द आंसर इज द वर्ड्स इन दिस लाइन हैव बीन रीअरेंज्ड फॉर पोएटिक इफेक्ट. तो करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? द सन नेवर डिड मोर ब्यूटिफुली स्टेप. तो यहाँ पे हाइपरबोल और इन्वर्जन दोनों है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन, you can see in this first splendor, valley, rock or hill. Here you can see which figure of speech is there? Personification. Why? Because the sun has been personified using the male pronoun. जैसे हिज मतलब किसके लिए लगता है? मेल पर्सन के लिए. ठीक है, तो वो मेल पर्सन किसको रिजेंबल और रिप्रेजेंट किया है? इट इज़ बिन सेट टू द सन. सो सन हैज़ बिन कंसिडर, सो देयरफॉर लिविंग बीइंग का क्वालिटी हो गया ना, सो देयरफॉर इट इज़ पर्सोनिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट लाइन वी विल टेक, नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप. यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन द पोएट ओवर स्टेटमेंट और हाइपरबोल स्टेटमेंट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो वाई द पोएट claims the beauty of the London in the early morning, it is very calmness is there, बहुत पीस है, बहुत साइलेंस है. देयर इज अ सेंस ऑफ calmness presented by, felt by the poet. That calmness, that peacefulness the poet had not experienced before, therefore it suggests clearly that the exaggerated statement is there, therefore it is hyperbole. Is that clear? Hyperbole के अलावा one more figure of speech is there, and that is inversion, because the sentence is not present in the proper order. The words in this line have been rearranged, okay, for poetic effect. What is the correct statement? I never saw, never felt a calm so deep. तो ये आपका प्रॉपर स्टेटमेंट होगा. ठीक है, तो देयरफॉर इट इज इन्वर्जन. नेक्स्ट लाइन, द रिवर ग्लीथ at his own sweet will. There it is personification. Why personification? Because the river has been given animate quality of having its own will. Okay, so will, human being का will रहता है, वो human being की quality river को दिया है, therefore it is personified. Now we will see the last two lines of this poem. First line, that is from second last line, it means, dear God, the very houses seem asleep. So there if you would see, it is personification, because the poet refers to the people sleeping in their houses by saying that houses themselves are asleep, thus the houses are given the animate quality of sleeping. तो house जो कि you can see non living thing है, is given the human being quality of sleeping. ठीक है, लास्ट लाइन में आ जाओ, एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल. ये लाइन में अगर आप देखोगे तो दो फिगर ऑफ स्पीच है. फर्स्ट वन इज मेटाफर. मेटाफर बिकॉज द पोएट कंपेयर्स द बिग सिटी टू अ माइटी हार्ट दैट इज लाइंग स्टिल. ठीक है, तो आप देखोगे देयर इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन अ बिग सिटी लाइक लंडन और माइटी हार्ट. माइटी हार्ट मतलब किसको बोला है? मैं फिर से समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में. माइटी हार्ट मतलब इफ यू वुड सी, इट इज सेड टू द सिटी ऑफ लंडन. लंडन सिटी के लोगों को बोला है माइटी हार्ट. तो देयर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन. ठीक है, और फिर से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है. व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन? बिकॉज द पोएट पर्सोनिफाइज द सिटी ऑफ लंडन एज अ स्लीपिंग पर्सन टू एम्फोसाइज द साइलेंस ऑफ एन अदरवाइज बिजी सिटी. तो यहाँ पे मॉर्निंग के वक्त अगर आप देखोगे तो इट इज स्लीपिंग सिटी, इट मीन्स साइलेंस इज देयर, बट अदरवाइज दैट प्लेस इज वेरी बिजी सिटी. इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पे आंसर आपका बनता है. इज दैट क्लियर? Now let's see the last part of this lecture, and that is appreciation of this poem. So I think the question you all are knowing, that is on page number 85, activity 5, third one, write an appreciation of the sonnet, that is
upon Westminster Bridge refer to the earlier poems for the points to be covered for appreciation. आपको point याद होना चाहिए क्या क्या था about the poem, poet and title, theme, poetic device, language, style, special features, याद है ना, value and your opinion about the poem. तो चलो हम लोग जल्दी से we will see how to write the appreciation of this poem. So let's get quickly started. Appreciation of the poem answer upon Westminster Bridge, which is very important of 11th standard syllabus. So first क्या point रहता है आपको भी याद है, about the poem, poet and title. So क्या है poem? The poem is written by William Wordsworth. What is the title of the poem? Title is Upon Westminster Bridge. उसमें आप about the poem में भी ये भी डाल सकते हो that poem is describing vivid description of the London थ्रू द आइज ऑफ पोएट. पोएट के नज़रों से हमने ब्यूटिफुल लंदन को देखा, तो यू कैन ऐड ओवर देयर. नेक्स्ट इज थीम. व्हाट इज द थीम? दैट इज द समरी यू हैव टू राइट. नेचर पोएट वर्ड्सवर्थ, that's why he is known as romantic poet, was highly fascinated by a gorgeous beauty of London. लंदन की ब्यूटी को he was so liking during early morning, especially in the sunrise, सुबह का वक्त. अ पॉज ऑन द ब्रिज वाइल क्रॉसिंग थैम्स रिवर, जब वो थैम्स रिवर क्रॉस कर रहे थे, ब्रिज के ऊपर थे, ही स्टॉप्ड ओवर देयर. ओके, ही बिगेन टू girdle, it means started saying the enormous beauty of the city. It means he started visualizing and shocked, कितना सुंदर ब्यूटीफुल ब्रिज, कितना अच्छा लग रहा है. एंड इट इज टर्निंग साइलेंस स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग. सुबह के वक्त वो ब्रिज एकदम साइलेंट है एंड द ब्यूटीफुल सीन देख के यू कैन सी साइट सीन बाय द पोएट मेक्स द पोएट मोर डिलाइट. ही कन्विंसिंगली स्टेट्स दैट at this point of the time mingles with the nature as a part of it. It's his conviction that one has to be amused by reverence, marveling towards the supreme beauty of the city before him. The poet is enamored, it means shocked and surprised also, by the grandeur, it means greatness of the different landmarks of the London which are visible from the bridge. Bridge के दूसरी तरफ बहुत कुछ है, you can see. Okay, Parliament House is there. Okay, so many things were there, you can see. Thames River is there, bridges are there, it has been connected. तो ये सब things देख के वो एकदम amazed हो गया है. The poet is in his bliss, to it means happiness, to find peace in the vibrant city in the wee hours of the day. सुबह के वक्त ये सब देख के he was so delighted and excited. तो ये आपका थीम हो गया. नेक्स्ट क्या आता है स्टूडेंट? नेक्स्ट इज द पोएटिक डिवाइस, लैंग्वेज और स्टाइल. सो मैंने आपको पैराग्राफ में प्रेजेंट किया है. The poet makes use of simple poetic devices like simile, hyperbole, personification. अभी हमने किया, ठीक है. And easy language is there. Okay, why? The poet intention is to reaching up to the common people. Common people को भी समझना चाहिए, इसलिए उन्होंने एकदम simple language का use किया है. Okay, the city now doth like a garment wear the beauty of the morning. तो ये लाइन में अगर आप देखो तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली. इमेज of a city wearing the morning sunshine like a piece of clothing, thus describing the poet's sense of wonder. Also अगर आप देखो इस पोएम में most notably personification का, मैंने कहा ना सारे figures of speech का आपको एक एक एग्जाम्पल डालने का, तो सिमिली का डाल लिया, एक personification का भी डाल दो. seems asleep, ठीक है, which is अभी ह्यूमन बीइंग सोता है, तो ह्यूमन बीइंग को सोता है, बट हियर लंडन सिटी इज सेड दैट स्लीपिंग. सो ओके, लंडन स्पेशली इज पर्सोनिफाइड. ओके, सो हियर यू कैन सी इट इज लंडन सिटी इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिटी, especially in the early morning. Okay, so therefore if you would see there it is personification. Alliteration, repetition जो बीच बीच में आए हैं, inversion, तो ये सब का आप एक एक एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया है. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी स्पेशल फीचर्स पूछता है. ठीक है, तो स्पेशल फीचर्स आपको मालूम होना चाहिए पोएम का क्या है. ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी. तो ये क्या है? राइमिंग स्कीम दैट यू हैव टू राइट बाय योर ओन. स्पेशल फीचर्स क्या है? हाँ, द पोएम इज पेट्रार्कल सोनेट. ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज 8 लाइन्स, इट मीन्स ऑक्टेव सेक्शन. सेकंड पार्ट इज नोन एज सस्टेड बिकॉज 6 लाइन्स आर देयर. तो ये आपका क्या हो गया? स्पेशल फीचर्स. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मोरल? Next point is, what is the message, values, morals in the poem? So the answer is, beauty is in the eyes of the beholder. Everyone should be
generous enough to appreciate others' qualities. Everyone must imbibe the qualities of patience and tolerance from the nature. हमको nature बहुत कुछ सिखाता है. Beauty is in the eyes of the beholder, and everyone should not be jealous but should appreciate the beauty. ओके अगर ब्यूटी है तो अप्रिशिएट करो, और वही वर्ड्सवर्थ ने किया. ब्रिज इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो ही अप्रिशिएटेड द ब्यूटी. ओके, सो ये आपके देखने के नज़र से, सो पूरा पोएम अगर आप हम देखें तो वी आर लुकिंग फ्रॉम द आइज ऑफ द वर्ड्सवर्थ एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग हाउ ब्यूटीफुल द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज देयर. सो तुम्हारा ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन राइट नाउ while reading this poem? It is an excellent poem that made me a keen explorer of the nature के ऊपर जो civilization हुआ है, especially done by the human being, that is marveled, that is कितना भी बोलो, whatever you would say, it is lesser. So that here it has been said, the nature's beauty must not be marred by the development made by man. अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स हमको सिविलाइजेशन की ज़रूरत है, नेचर ब्यूटी इज़ रिक्वायर्ड, बट नॉट एट एक्सटेंट कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप फॉरेस्ट कट करके बिल्डिंग्स वगैरह सेटअप कर रहे हो तो वो रॉन्ग है, ठीक है. बट फॉर सिविलाइजेशन, इफ़ यू आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग फॉर गुड, देन इट इज़ appreciated by everyone. So that this is the appreciation of this poem. So by this we come to the end of this lecture. We had seen today full line by line explanation of this poem. Even we had seen you can see very important thing, and that is rhyming words and rhyming scheme of this poem. We had seen Petrarchan's sonnet, that is octave and sestet, that we had seen. Line by line we had solved the figures of speech of this poem. Lastly we had seen appreciation of this poem. ओके, सो एग्ज़ाम में आपको 8 लाइंस कोई भी आ सकता है, तो आपको देख के अप्रिशिएशन उसका लिखना है, और मैंने नोट्स दे दिया है. फिगर्स ऑफ स्पीच अप्रिशिएशन में एग्जाम्पल के लिए आपको डालना है. इज़ दैट क्लियर? सो इन दिस वे वी हैड completed, but one thing I must remind you, that whenever the college will reopen, I am going to check it, that whatever the notes that today I had provided you, that should be there in your notebook. जो भी नोट्स दिया है आज सब पूरा नोट्स मेरा नोटबुक में आप लोग जॉट डाउन लिख के रख लो, ठीक है. सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस लेक्चर, एंड इवन वी हैड कंप्लीटेड दिस पोएम ऑल्सो. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. Till then, read the poem very carefully, write down all the notes whatever I had given today, and enjoy learning. This is Garima Miss signing off. Stay home, stay safe.